الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وآلانا وأولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. علی علی دی آواز آنی چاہیے، پورا بے شک نہ پڑھو لیکن علی علی دی آواز گونجنی چاہیے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا
سب سے عالی گرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ درود حضور جانے جانا، حضور جانے ایماں، رحمت کائنات، رونق کائنات، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ جی کی عظیم عظیم اہل بیت پر، آپ کی کریم اصحاب پر، اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے۔ عظیم گھڑیاں جمعۃ المبارک کی جاری ساری ہیں، اس گھڑی میں کوئی بھی درود حضور جانے جانا پہ پڑھتا ہے تو حضور اس کا درود خود سماعت فرماتے ہیں۔ معراج النبوہ کتاب ہے، اس میں ایک درود شریف کے حوالہ سے بات لکھی گئی، فرماتے ہیں کہ دوست تھے دو، بڑے جگری یار تھے، بڑی آپس میں ان کی محبت تھی، ایک تھوڑا غریب تھا دوسرا امیر تھا، اور دنیا کا نظام ہے بابا جی، کوئی بندے کے پاس بڑا مال و دولت ہے اور کوئی بندہ اپنا وقت ہی بڑی مشکل سے پاس کر رہا ہے۔ ایک بندہ تھا، یار بڑے تھے، ایک کے پاس بے شمار دولت تھی اور دوسرا بالکل ماڑا تھا، آپس میں پیار بڑا تھا۔ تو جو غریب تھا نا، اس نے ایک دن اپنے جگری یار سے کہا کہ یار کاروبار کوئی نہیں چل رہا، نظام دنیا بڑا درم برم ہے، تو آپ ایسا کرو کہ 3000 دینار مجھے بطور قرض دے دو تو میں کوئی نہ اپنا کاروبار کر لیتا ہوں۔ دینار بڑے دینار تھے اس وقت کے، دینار کمال کی بات ہے۔ تو یہ دینار اور درہم میں فرق ہے، یہ چاندی اور دینار سونے کے، یہ لہدا لہدا۔ اس نے کہا کہ مجھے نا 3000 دینار دے دو تاکہ میں اپنا کاروبار کر لوں۔ بڑا دوست، بڑا شفیق تھا، بڑا مہربان تھا، اس نے نا غریب کی خدمت کرنے کے لیے اپنا نظام چلا لے۔ اس نے کہا جی آج مجھے دے دو تو فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں میں یہ رقم واپسی لوٹا دوں گا۔ اب اس نے اپنا کاروبار کیا تو رب کی شان ہے، کسی کو نوازتا ہے، کسی کو نا نواز کے بھی آزماتا ہے، کسی کو تو بے شمار دے دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا میرا شکر بجا لاتا ہے، اور کسی کو نہیں دیتا، پھر دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا صابر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں بھی رکھیں کہ بندے کو رب دے یا رب لے لے، جو بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، پھر میں نعمتوں کو ویسے بڑھا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ کوئی ہو تو صحیح۔ اس نے کاروبار کیا تو کاروبار اس کا فلاپ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہوا تو جو وقت مقرر تھا اس کا امیر دوست اس کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا جی آپ کا آج کا وعدہ تھا، جو میں نے رقم تھی وہ میری واپسی کر دی جائے۔
गरीब दोस्त ने कहा जी प्यार बड़ा है, मोहब्बत बड़ी है, लेकिन ये है कि मैंने कारोबार किया था, उसमें ना मुझे नुकसान हुआ है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूं। अमीर दोस्त को गुस्सा आया कि यार तूने वादा किया था, अब हमारी दोस्ती भी जाएगी, निज़ाम भी सारा खराब होगा। उसने कहा जी मैं ना तुम्हें काजी की अदालत में लेके चलूंगा, वहां पे फैसला करवाऊंगा कि वक्त पूरा था लेकिन इसने पैसे नहीं मुझे वापस दिए, तो इसका क्या हल किया जाए। काजी ने जनाब वाला जाके कहा जी ये बात पहले हुई, उसने कहा जी बिल्कुल इसी तरह बात सारी हमारी हुई, तो अब वापसी उसने कहा जी मेरा कारोबार नुकसान में है तो मैं नहीं लुटा सका, वक्त आएगा तो मैं लुटा दूंगा। काजी ने कहा जी तेरे पास 1 महीने का वक्त है, अगर तू मुकर्रर रकम जो 3000 दिरहम है वो तो दिनार है वापसी दे देगा तो तुझे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तुझे लटका दिया जाएगा, तुझे फांसी दे दी जाएगी। अब बंदा बड़ा परेशान था कि यार खाने पीने के लिए पहले कुछ ना था, ऊपर से कर्जा भी 3000 चढ़ गया। अब जब काजी की अदालत से निकलता है तो बंदा बड़ा फकीर टाइप का था, बाबा जी बात बड़ी सुनने वाली है। उसने ना किसी महफिल में किसी मौलवी से सुना था कि जब बंदे के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हुजूर जाने जाना की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़े तो रब मुश्किलें आसान फरमा देता है। उसने कहीं कहीं गुजरते कहीं जुम्मे में या कहीं से ये बात सुनी थी तो उसके जहन में यार बात आई कि जब कोई किसी का हाल नहीं पूछता उस वक्त सरकार को बात सुनानी चाहिए। उसने कहा जी जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होता तो हम उस आका के गुलाम हैं जो उस वक्त भी हमारा बाजू थाम लेते हैं। ज़हन में तमन्ना थी, उसने कहा जी ये बात ठीक है। अब वहां से चला, दिल में नीयत की कि यार मैं पैसे तो वापसी नहीं कर पाऊंगा लेकिन कोशिश करता हूं कि अब ना रोजाना हुजूर जाने जाना की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा करें। मैं रोजाना कोशिश करूंगा कि दुरूद और सलाम पढ़ूं और राज राज के पढ़ूं। वो घर गया, जाके जनाब परेशानी के हाल में मुसल्ला बिछाया और हुजूर जाने जाना की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू हो गया। बड़ा मुकद्दरों वाला वो बंदा होता है जो हुजूर की बारगाह में हर इबादत हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सनद नहीं है कि ये कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन दुरूद एक ऐसी अजीम चीज है कि हम पढ़ते हैं, हुजूर कबूल फरमा लेते हैं। अब उस बंदे ने जनाबे वाला दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, मुसलसल पढ़ता रहा, लेकिन इसी ताक में था कि कब हुजूर अपना दीदार करवा देंगे। 26 दिन बाबा जी गुजर गए, 4 दिन रह गए, काजी की अदालत में भी पेश होना था। परेशानी भी थी कि पैसे कहां से आएंगे, अगर ना आए तो वो तो पकड़ के लटका देगा। अब क्या हो, 26 दिन गुजर गए, लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त 26वीं रात में सोया ना तो मुझे ना गैब से एक आवाज आई और आवाज मैंने ये सुनी कि ए बंदे घबरा ना, तू जो वक्त का वजीर है ना अली बिन ईसा, उसके पास जा और जाके कहना कि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे ना 3000 दिनार दे दिए जाएं ताकि मैं कर्ज चुका लूं। अब वो परेशान था कि यार ये पता नहीं कहां से आवाज है। सुबह उठा, पहले परेशानी ज्यादा होती थी लेकिन इस रात कुछ सुकून हुआ कि यार लगता है कहीं से इंतजाम हो जाएगा। यकीन हो गया कि हुजूर हर चीज सुन रहे हैं। अब 27वीं रात आई तो फिर वो सोया तो परेशानी का हाल था, तो फिर ना कहते हैं जी मुकद्दरों की बात है, मैं इशा की नमाज पढ़ के सोया तो ख्वाब में हुजूर जाने जाना का दीदार नसीब हो गया। कितना वो खुश नसीब बंदा है। मेरे आका ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने हक मुझे ही देखा, और जो फिर मेरे आका को देख लेता है उनका चेहरा हसीन है, उन जैसा कोई नहीं है। उसने हुजूर का चेहरा देखा तो फिर गम भूल गई। मेरे आका ने सलात व सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदे परेशान ना हो, वक्त के वजीर के पास जा, अली बिन ईसा उसका नाम है, उसे जाके कहना कि मुझे हुजूर जाने जाना ने भेजा है तो वो तुझे तेरी रकम दे देगा। अब जनाब सुबह उठा बड़ा खुश कि मैं अब जाऊंगा तो जाके जनाबे वाला पैसे ले आऊंगा और मेरा कर्ज उतर जाएगा। सुबह जब जाने लगा ना तो जहन में ख्याल आ गया कि मैं जब उस वजीर के पास जाऊंगा तो जाके कहूंगा मुझे हुजूर ने भेजा है। अगर उसने ये पूछ लिया कि तेरे पास कौन सी निशानी है कि वाकई हुजूर ने भेजा है, तू कहीं दांत तो नहीं लगा रहा,
ذہن میں بات آئی کہ کہیں یہاں سے جاؤں گا پریشانی کے حال میں, وہاں جاؤں گا, آگے سے اس نے کوئی نشانی پوچھ لی, میرے پاس نشانی نہ ہوئی. ہوتا ہے نا جناب, کوئی بندہ کسی کو بھیجے تو کہتا ہے کہ میرے فون پہ بات کروانا, یا یہ میرا بطور کوئی چیز دے دیتا ہے کہ یہ دکھانا تو وہ تجھے چیز عطا کر دے گا. اب یہ پریشان تھا, میرے پاس نشانی کوئی نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وزیر پکڑ کے مجھے اور سزا دے. پریشانی کے حال میں پھر اگلے دن درود پڑھتا رہا. اسے نیند آ گئی تو حضور دوبارہ تشریف لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے تو گھبراتا کیوں ہے, پریشانی کس چیز کی ہے؟ عرض کرنے لگا, سیدی پریشان اس لیے ہوں, آپ آئے ہیں, میرے مقدر چمک گئے ہیں. پریشانی مجھے یہ ہے کہ اگر اس نے پوچھ لیا کہ نشانی کیا ہے تو میں کیا بتاؤں گا, وہاں تو جا کے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام, اب تو نے پوچھی ہے نشانی, تو یہ میں تجھے نشانی دینے لگا ہوں. یہ نشانی کیا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور جا کے کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. جب وہ کہے کہ نشانی کیا ہے تو کہنا کہ مجھے اس آقا نے بھیجا ہے جس آقا پہ تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک کسی بندے سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک 5000 مرتبہ حضور کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا. کتنی مرتبہ جی؟ 5000 مرتبہ. اب جس وقت وزیر نے پوچھا نا, تو یہ بندہ تو پہلے نیت کر کے گیا تھا تو میں بتا دوں گا. وزیر نے پوچھا کہ تیرے پاس نشانی کیا ہے, تو اس نے کہا جی نشانی یہ ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ وزیر اتنی دیر تک کسی بندے سے بات نہیں کرتا جب تک 5000 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھ لیتا. اب اس کے راز کی بات تھی, وہ کسی کو بتاتا نہیں تھا, لیکن جب کسی پیر یا کسی استاد کا بندے کو سندیسہ پہنچے نا, کوئی پیغام آئے نا, تو بندہ اچھلتا ہے, بندہ جھومتا ہے کہ یار مجھے کسی نے پیغام بھیجا ہے. تو یہ تو تاجدار ختم نبوت کا پیغام آیا تھا. وہ وزیر جناب والا چکر لگا رہا ہے, جھوم رہا ہے خوشیوں میں کہ یار میں کتنا خوش نصیب ہوں, مجھے آقا جانے جانا نے پیغام بھیجا ہے. تو کہنے لگا کہ تو میرے لیے سب کچھ ہے, کیونکہ تو حضور کا پیغام لے کے میرے تک پہنچا ہے. تو وزیر نے کہا کہ میں اب ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی. اس نے کہا کہ حضور جانے جانا نے فرمایا تھا کہ جانا اور اس کے پاس جا کے عرض کرنا کہ مجھے 3000 دینار دے. وہ بندے نے بٹھایا, وزیر بھاگا گیا, جا کے جناب والا 3 نہیں 9000 دینار لے کے آیا, اور آ کے کہنے لگا کہ 3000 وہ ہیں جو تو میرے پاس لینے کے لیے آیا ہے, 3000 وہ ہیں جو تیرے بچوں کے لیے, اور 3000 میں اس خوشی میں دے رہا ہوں کہ تو محمد مصطفیٰ کا پیغام میرے تک لے کے آیا ہے. اب 9000 دینار مل گئے. ہوتا ہے نا یار, کوئی بندہ کسی کا پیغام آئے تو بندہ اپنی جیب میں ویسے ہی خوشی کے مارے دے دیتا کہ جا یشی مار. اب یہ بندے کے پاس آ گیا 9000 دینار. یہ بندہ بڑا خوش, یا باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس نے کام پھر نہیں چھوڑا, پھر وہ تسبیح پڑھی تو وہی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھتے پڑھتے قاضی کی بارگاہ میں چلا گیا. آخری دن ہے. قاضی نے پوچھا کہ بتا تیرا مہینہ گزر گیا ہے, تو اب رقم لوٹائے گا کہ کیا کرے گا؟ اس نے جناب والا اپنی جیب سے نکالا 3000 اور جا کے دیا قاضی کو. کہا کہ یہ 3000 ہے, اس کو واپسی لوٹا دیا جائے. اس کا امیر دوست بھی عدالت میں بیٹھا ہے. امیر دوست پریشان ہوا. اس نے کہا کہ یار بندہ تو بڑا ماڑا ہے, تیرے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا, تیرے رشتہ دار عزیز و اقربا بھی بڑے ماڑے تھے, تو نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے نہ پوچھو, بس جب بندہ ان کا ہو جاتا ہے رب سب کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے, اور میں تو درود و سلام پڑھتا ہوں. تو جناب والا جب یہ بات سنی تو قاضی صاحب نے نہ کہا میں پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. وہ یار تو کتنا خوش نصیب ہے, تجھے آقا جانے جانا کا دیدار نصیب ہو گیا. اس نے اب جناب والا قاضی گیا, 3000 اس نے دیا. اب جو اس کا امیر دوست تھا نا, اس نے کہا کہ یار سارے پیسے میرے تھے, مقدر میرے غریب دوست کے بھی چمک گئے, قاضی کے بھی چمک گئے, تو میں کیوں نہ اپنے مقدروں کو چمکاؤں. اس نے کہا جی جو میں نے 3000 لینے تھے وہ بھی تجھے معاف کر دیے. اب یہ بندہ خوش ہے, یہ بندہ جھوم رہا ہے. کہاں 3000 اور کہاں جناب والا 9 سے 12. وہ بندہ خوش ہے اور زبان پہ ایک ہی ورد ہے,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में राज राज के दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। एक ये जहां, एक वो जहां, एक ये जहां, एक वो जहां, इन दोनों जहां के दरमियां फासला है एक सांस का जो चल रही है। तो ये जहां जो रुक गई तो वो जहां, इन सांसों के ऊपर मोती परोलो दुरूद के। ये जहां हो या वो जहां, हमारी हिफाजत करेंगे ताजदारे दो जहां। उसने कहा जी क्या बात है, ये जहां हो या वो जहां, हमारी हिफाजत करेंगे जी ताजदारे दो जहां। ये दुरूदो सलाम है। वो काजी के भी मुकद्दर चमक गए, वो जनाबे वाला गरीब दोस्त की भी बिगड़ी बन गई, अमीर दोस्त भी खुश हो गया। तो विर्द वो क्या किया करता था कि राज राज के हुजूर की जात पे दुरूदो सलाम पढ़ा करता था। ये जिंदगी का मकसद बना ले। मैं सुबह ना काजी अयास मालकी रहमतुल्लाह अलैह आपकी मायानाज किताब अश-शिफा शरीफ पढ़ रहा था, और यकीन माने दिल खुश हो जाता। उनका एक एक वर्क, वो किताब ही कमाल है। उनमें उन्होंने एक बात लिखी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम थे ना, तो एक सहाबी बड़ी दूर से आए, मेरे ज़हन में नाम नहीं अभी, तो वो न बड़ी दूर से आए। उनका इरादा ये था कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करूं। तो सहाबा किराम हुजूर जाना के इर्द गिर्द साइडों पे ऐसे सर को झुका के बैठे हुए थे। कहते हैं जी कमाल है, उनके सरों के ऊपर परिंदे आके बैठ जाते लेकिन उन्हें परवाह नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह यह थी कि सहाबा किराम का ये यकीदा था कि जो आका के कदमों में सर को झुका लेता है रब सब कुछ ही अता फरमा देता है। मोहब्बत बड़ी चीज है यार, निस्बत हमारी पक्की होनी चाहिए। मैं हर चीज पे आपके सामने कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ रखा जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरी जिंदगी का मकसद है वो यही है कि जिंदगी का एक मकसद बना ले, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना। जोर से कहें, इन्हें जाना इन्हें माना। बस हुजूर से हमारी इब्तिदा है और वहीं तक हमारी इंतहा है। जब ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं। आज का मौजू था हजरत सैयदना अली मुर्तजा वजहुल्लाहुल करीम। बातें उन्हीं की करनी थी, लेकिन ये दुरूद सलाम के बाद पहुंचानी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जाद भाई है हजरत अली मुर्तजा वजहुल्लाहुल करीम। अब सोचने की बात यह है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये मुकाम व मर्तबा कैसे मिला? चचा ज्यादा अफजल होता है उसके बेटे बाद में होते हैं। अब एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाचा है जिसके बारे में रब कुरान में फरमाता तब्बत यदा अबी लहब व तब, तूने एक हाथ मेरे महबूब की तरफ किया था, रब फरमाता तेरे दोनों हाथ ही टूट जाए। वो भी तो आका का चाचा है, लेकिन उसकी निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं हुई। और एक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचे का बेटा है, नाम हजरत अली मुर्तजा है। नाम क्या है जी? हजरत अली मुर्तजा। इनकी निस्बत हुजूर से हो गई है, रब ने इनके मुकद्दर ही बुलंद करा दी। वजह यह है कि जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाती है, जो हुजूर का नहीं हुआ वो किसी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता, जो मर्जी बंदा कर ले। अब ये मैं नहीं, सूरत लाह पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत, सूरत ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, सूरत बलद में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाता है, जिसकी निस्बत हुजूर से होती है मुकद्दर उसी के चमकते हैं। अब रब हुजूर जाना के शहर की भी कसमें अता फरमा रहा है, कसमें खा रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसमें उठा रहा है। यार बंदा सोचे वजह क्या है। ये जो काबा है ये तो पहले भी था, ये तो हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी थी, निशानी थी। हजरत इब्राहिम ने फिर आके तमीर की, हजरत ईसा, मूसा, हजरत इस्माइल, जितने भी ले हर नबी यहाँ पे आया, लेकिन रब ने कसमें नहीं उठाई। लेकिन जब ताजदारे खत्मे नबूवत आते हैं, रब उस जगह भी की कसम उठा लेता है। फरमाता है महबूब जी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया महबूब जी आप जब सुबह सुबह गलियों में घूमते हैं, रब उन गलियों की भी कसमें उठाता है। फरमाता है महबूब जी आप चलते मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। जरा बंदा तसव्वुर करे
کہ उन गलियों उन मट्टी की कसम रब उठा रहा है। इसकी वजह क्या है? उसकी निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के साथ हो गई है। कदमों से नीचे है जूता, जिसे हम नालैन शरीफ कहते हैं। हम नालैन शरीफैन, करीमैन, रहीमैन, तय्यबैन, ताहिरान कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन की निस्बत हुई हुजूर से, उस नालैन की निस्बत हुई मट्टी से। अब मट्टी की निस्बत हुजूर के जोड़ों से होती है, रब उस मट्टी की भी कसमें खाता है। तो आप तसव्वुर की दुनिया में जाएं, रब जिस मट्टी की निस्बत नालैन से हो जाती है उसकी भी कसमें खाता है। तो जिस अली को सामने बिठा के रब के हबीब ने कहा था, लाहमू का लाहमी, जिस्मू का जिस्मी, ए अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, उस अली का मुकाम मर्तबा क्या होगा? बंदा देखे ना यार, निस्बत जिस जिस तरफ हो जाती है रब मुकद्दर उनके बदल देता है। और सैयदी आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो कमाल है, आप तो इश्क की दुनिया में लाजवाब हैं। आपने कहा कि जो सैयद हुजूर जाने जाना की ताज़ीम नहीं करता, जो अदब नहीं करता, उसका जो कनेक्शन हुजूर की ज़ात से है वो कट जाता है। और जो बंदा वहां से कट गया फिर दुनिया के किसी कोने में चला जाए उसका कुछ बन सकता ही नहीं है। इसलिए अपने आप को हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हमें झुकाना पड़ेगा। और जब जब हम झुकाएंगे हमारा मुकद्दर बुलंद होता जाएगा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम, आपका मुकाम व मर्तबा क्या है? आपकी निस्बत बड़ी आला है। और हम वो बंदे नहीं हैं। आज के दौर में तो लोग सारे हैदर हैदर के नारे लगाते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदर लगाते हैं, हम भी कहते हैं कि हम हैदरी हैं, हम हजरत अली के मानने वाले हैं। लेकिन हम उन लोगों में नहीं है जो जनाबे वाला 15-20 अंगूठियां पहनी और जनाबे वाला 20-20 दिन 40-40 दिन तक नहाए नहीं और विर्द एक ही आबाजी हैदर हैदर हैदर, ना जनाबे वाला वुजू, ना जनाबे वाला गुस्ल, ना कोई शरीयत ना शरीयत का पता, तो बस कहते हैं जी हम हैदर हैदर हैदर। हम भी हैदर करते हैं, लेकिन हम हैदर हैदर करते हैं कुरान और सुन्नत की मौजूदगी में करते हैं, हम कुरान मजीद की रोशनी में करते हैं। हम कहते हैं कि हैदरी हम हैं, लेकिन हमारी निस्बत भी हुजूर जाने जाना से पक्की सच्ची है। आज के दौर में सबसे पहले हम अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कुरान का दामन थामना पड़ेगा, हुजूर के जोड़ों के साथ हमें निस्बत पक्की करनी पड़ेगी। ये निस्बतें बड़ी चीज हैं। हजरत अलीउल मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम, आपका लक़ब है ना हैदर, हम हैदरी हैं और हम हैदर कहते हैं और हैदर के बावजू हम हैदर कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदर है ना, लफ्ज़ हैदर, इसके माने बहुत ज्यादा हैं। इसके माने उलमाए किराम ने 600 से ज्यादा लिखे हैं। उनमें से पहले नंबर पे फरमाते हैं कि हैदर का एक माना है जब शेर जो होता है ना, शेर जब वो नॉर्मल हालत में होता है, एक जगह पे बैठा होता है, फरमाया उस हालत में उसे शेर, उसे असद कहते हैं। शेर जब अपने आराम से बैठा होता है तो उसे क्या कहते हैं जी? असद। शेर वो जो जनाब जंगलों का बादशाह है, वो शेर नहीं जो आजकल लकीराने वालों ने पकड़ के जनाब कैद किए हैं, वो तो पकड़े गए हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते। और फरमाया जब शेर शिकार की तरफ नजरें जमा लेता है तो उसे जरगाम कहते हैं, और जब शिकार की तरफ नजरें जमाने के बाद उसे पकड़ता है तो उसे गजनफर कहते हैं, और जब उसे दबोच लेता है उसे हमजा कहते हैं, और जब दबोच के उसकी सांसें बंद कर देता है तो उसे अब्बास कहते हैं, और जब शेर पकड़ के किसी के 2 टुकड़े कर देता है तो उसे हैदर कहते हैं। हैदर हर बंदा नहीं हो सकता। जब दुश्मने मुस्तफा को काट के रख दिया जाता है फिर रब का सजन उसे हैदर का लक़ब अता फरमा देता है। ये हैदरीयम कलंदरम मस्तम, ये हैदर बड़ा अजीम लक़ब है, लेकिन कोई हैदर को समझे तो फिर उसका मुकाम मर्तबा समझ में आता है। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजा मोहतरमा
सैयदा आशा सदीका अफीफा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप एक दिन ना अपने अब्बा जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपसे अर्ज करती हैं कि या ए अब्बा जी, आप हर वक्त हजरत अली को देखते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं जब देखती हूँ आप बैठे घर में होते हैं, जहां भी हजरत अली नजर आए आप टिक लगा के देखते रहते हैं, इसकी क्या वजह है? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बड़ा अजीम लफ्ज फरमाया। आपने फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्जुर फी वजही अली जिन इबादतुन, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से सुना है कि अली के चेहरे को तकने से भी रब इबादत का सवाब अता फरमाता। यार ये शान कौन बयान कर रहा है? अगर ये बात होती अपनी आप अपनी अना की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बात को छुपाते, लेकिन सिद्दीक हो बात छुपाए ऐसा हो सकता नहीं। जितनी भी हजरत अली की शान में रिवायतें आई हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और सहाबाए किराम से जरिए से हम तक पहुंची हैं। जितनी भी सहाबाए किराम की अजमत की बातें हैं वो जनाबे वाला अहले बैत के जरिए से हम तक पहुंची हैं। हम हजरत अली को मानते हैं लेकिन हम खलीफा चहारम मानते हैं, हम हुजूर गौसे पाक के अकीदे का दिफा करते हैं, हम सैयदी आला हजरत के दीवाने हैं। जो हमें उन्होंने तरीका बताया, जो निस्बत बताई कि सबसे पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा हजरत उमर फारूक का है, तीसरा हजरत उस्मान गनी का है और चौथा हजरत अलीउल मुर्तजा का है। निस्बतें और तरतीब ये कायम रखनी है। अब लोग कहते हैं कि हजरत अली, हम भी कहते हैं हजरत अली जैसा कोई नहीं। लोग कहते हैं वो काबे में पैदा हुए, वो वराउल वरा हैं, उन जैसा कोई नहीं। लेकिन बात यह है कि कभी बंदा तसव्वुर की दुनिया में जाए, वो काबे में पैदा हुए तो उनका मुकाम बड़ा है। तो हजरत मखदूमा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा, आप तो जनाबे वाला काबे में पैदा नहीं हुई, तो क्या उनका मुकाम मर्तबा कम है? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो काबे में पैदा नहीं हुए, तो क्या उनका मुकाम मर्तबा कम है? उनका मुकाम मर्तबा बहुत है, बल्कि काबे को भी अगर निस्बत मिलती है तो हुजूर जाने जाना के कदमों से मिलती है। ये कहाँ थे? 365 366 पता नहीं कितने बुत थे इस काबे में। लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद होती है, काबा भी झूमता है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा आप पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों खुश है? तो वो जुबानी हाल से कहता है, पहले तो लोग मेरे पास आते थे, मेरे पास आके अपने आप को पाक करते थे, लेकिन अब वो आ गया है जिसके चेहरे को भी बंदा मोहब्बत से देखेगा, रब सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। काबे को भी पाक करने वाला अब आ गया है। तो हजरत अलीउल मुर्तजा वजहुल्लाहुल करीम, आपका जो हुजूर जाने जाना से वफा है और जो आपका मुकाम व मर्तबा है वो हर बंदे के सामने है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गुलाम ने, जिस वक़्त करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गज़वाए गदीर खुम के मौका पर हजरत अलीउल मुर्तजा वजहुल्लाहुल करीम आपको सामने बिठाया और आपका बाजू पकड़ के फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु, मन कुन्तु मौला अली अली, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब ये जब हुजूर जाने जाना की जुबान से निकलता है तो सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उस वक़्त गए और जाके हजरत अलीउल मुर्तजा से अर्ज की कि ए अलीउल मुर्तजा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से मैंने ये सुना है, मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आज से तू मेरा भी मौला है और हर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का भी मौला है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर अली बहादुरी का एक पैकर थे। आपने बहादुरी में एक अपना मुनफरिद कारनामा अंजाम दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूसे रिसालत का जब मसला आता है तो आपने अपने आप को छुपाया नहीं। गदीर खुम और गज़वाए बनी
नजीर का जिस वक्त ये वाक़या रूनमा होता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त जंग लड़ने के लिए गए ना तो हजरत अली उल मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम आपने अचानक लड़ते लड़ते गायब हो गए, सामने नजर नहीं आए। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम का टाइम हो गया, हुजूर के सारे गुलाम बड़े परेशान थे, बड़े अफसुर्दा हो गए कि आज हमें अली नजर नहीं आ रहे, पता नहीं अली कहाँ चले हैं, कहाँ चले गए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए, आके कहने लगे सैयदी आज हजरत अली नजर नहीं आ रहे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों घबराना नहीं, तुम्हारे हिस्से का जो काम था वो हजरत अली करने के लिए गए हो, हजरत अली तुम्हारे हिस्से का काम करने गए हैं। कहते हैं कि ये बातें सुन रहे थे, ये बातें हो रही थी कि इतने में हम क्या देखते हैं कि हजरत अली उल मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम आप हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले आए। आपने अपने हाथ में एक सर पकड़ा हुआ था, अज़वक नामी काफिर का सर था, और उस सर को आपने ना किसी चीज में डाला था। हुजूर जाने जाना की बारगाह में आए और सर को पटक के नीचे फेंका और कहा हुजूर ये उस काफिर का सर है जो आपकी गुस्ताखी करता था। तो हो हैदर, हो जैगम, हो जनाबे वाला गुजनफर, लकब हो हैदर, तो हुजूर की कोई गुस्ताखी करे तो हैदर चुप रहे, मुझसे ये गवारा नहीं हुआ, मैंने इसका सर तन से जुदा करके आपके कदमों में लाके फेंक दिया। ये हजरत अली उल मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बंदा काम क्या करता था, ये बंदा अज़वक नामी इसका काम क्या था, ये जिस खैमे में हुजूर जाने जाना बैठे थे ना उस खैमे की तरफ तीर लगाता था। क्या लगाता था? तीर। और इसका इतना निशाना था, जहां ये निशाना कैम कर लेता था वहां जाके निशाना लग जाता था। हजरत अली ने जब देखा कि मेरे हुजूर जाने जाना के खैमे की तरफ, हुजूर की जात की तरफ नहीं, खैमे की तरफ तीर फेंक रहा था, तो आपने मसला नमूसे रिसालत में हमें बता दिया कि हुजूर की जात तो बड़ी वराउल वरा है। अगर कोई आपके किसी जगह की तरफ, आपके किसी फर्द की तरफ भी अगर नाजेबा गुफ्तगू करता है या जनाबे वाला तरह तरह की बकवास करता है तो अली का फैसला यह है कि उसका सर तन से जुदा करके रख दिया जाए। यही वो अली हैं जिसकी जुबान से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत अली इसको नवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान मुबारक से ये लफ्ज सुने थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सब्बा नबीजन फक़्तुलूहु, फरमाया कि जहां भी कोई काफिर मिले उसका सर तन से जुदा करके रख दिया। नमूसे रिसालत का मसला बड़ा हसास है। आज के दौर में अगर कोई खबीस किसी जगह पे बैठ के हुजूर जाने जाना की गुस्ताखी करता है तो वो इस दुनिया में भी रुसवा होगा और कल क़यामत के दिन भी रुसवा होगा। हजरत अली का नाम सारे लेते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी उनका जिक्र करते हैं, हमसे बढ़ के कोई उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि शरीयत की हुदूद को देखा जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज के दौर में अगर बंदा वही बात है कि मुंदरियां डाल ली और जनाबे वाला अंगूठियां पहन ली, अली अली करता रहे, वो क्या अली को, उसे क्या पता कि अली क्या चीज है, अली का मुकाम क्या है। अली की तो एक नमाज रह जाती है तो जनाबे वाला सूरज नहीं डूबता। आज हमारी सारी की सारी नमाजें रह गई और हम ये बात करें कि हम हैदरी हैं। नाना बाबा, हमें देखना पड़ेगा कि हजरत अली हमें क्या दर्स दे रहे हैं। उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार दी, हुजूर की निस्बत का पटा अपने गले में डाल लिया और जनाबे वाला आपकी नमूस का जब भी मसला आया हजरत अली सबसे पहले मैदान अमल में आए। ये दर्स हमें हजरत अली देते हैं कि हुजूर से वफा करें तो हर चीज से बढ़ के करें। जब हमारी वफा हुजूर से पक्की हो जाएगी फिर घबराने की बाबा हमें जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत अली मुर्तज़ा आपके नक्शे कदमैन के मुताबिक हुजूर की नमूस रिसालत के ऊपर पहरा देने की भी तौफीक अता फरमाए और आपके साथ सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।